Okay, sir. So shall we start, sir? Yeah, please carry on. Yeah. So I'm just starting my. I'm sharing my screen. Everybody can see my screen. Everyone can see my screen. Yeah. Yep. Good. Okay. So, sir, our company is Secura, and I am the technical director for the company, sir. Okay. And with me, my from my team, Akshay is there and Ashwini is there, who are working as a business development manager, sir. Okay. And our company is Senda Group. We are a UK based company, and we have a different business ventures in India. We have a resorts in Goa, which is Baywatch Resort and Dudhsagar Spa Resort. We also have a Your Wellness magazine. We also have a Your Wellness magazine, and this business unit for the technology we have started as a wellness media and technology in 2011. Okay. And the focus with our technology is that whatever the data right now we are generating in the digital world, which is not in our control. Okay. So we thought that how we are going to control this, because we already face the problem within the organization that our internal person who is the director of the company who tapped our data and he started the business, and we fall into some financial loss. Okay. So that's how this product was come into our mind that okay, we if we are a technology company where we already have a DLP, data leakage prevention, and firewall and other system, then also people are able to copy the data, then how we are going to come provide the solution that which 100% sure that data is in the owner's control, not the employee's control. And that's how we have developed this application, sir. Okay. So our mission is, sir, to put you back in control of the data, sir. Okay. So what type of generally data we generate in our organization? So in our organization, we generate Word, Excel, PowerPoint, PDF files, emails, and other type of data we generate. So why I'm saying the Word file and Excel file and PDF files? Because we, whatever the data is there, like sales report, we generate in Excel. If we are using some softwares, we generate reports in PDF formats. If we have a HR, so HR is maintaining all the data in Word file of the employees. So we also have business plans, sales report, customer data, so many data we have, which is there in our organizations. Okay, and this type of data we already generating day to day. And this data we typically store in our organization in might be the computer, which is the employees are using. Even we use the cloud storage server, or we also create one data server in our organization where we store the central data. And we also store data, in some of the data will be available on an email also, might be on the external hard drive, USB also we store. And if you are allowing user to use mobiles or external, it means like mobiles, then they are also data is available on their local storage devices of the mobiles or device gallery also. Okay. So because see what I'm trying to say here, that because of internet, our behavior is changed. Because see, if you know, before 15 years, we are maintaining data physically. All the data was available in the physical data, and in the physical and the digital world, the major difference is the physical data is available in front of you. And if suppose somebody stole or something is happened, you know that data is stolen, okay, or copied. But in the digital world, the data lies within you. You know, you can see the data, but if suppose somebody in the background makes a multiple copies, you don't know. And second, because of internet behavior, we distribute data. Even your organization, whatever the data your employees are generating, they are distributing through different mediums. Like they distribute data through emails, through instant messaging application. Nowadays, people are sharing data through WhatsApp or Telegram. Even we share data, if the big file is there, then we share data through cloud sharing platform like WeTransfer. We upload the data on the cloud, Google Drive or Dropbox, or might be a OneDrive, and we share the data. We also share the data through remote application like Anydex or TeamViewer. Okay, so we use the multiple application to share the data, right? And now I want to ask you a question, sir. Who do you think is the real danger for your data and subsequently for the business? Means your data is right now in the danger, but who do you think is the responsible? It's the employee or a technology you see?
Sir, can you answer this? Anybody can answer this? Hello? Okay. So the problem is right now with the data danger is the people, sir. As per Accenture and the IBM report last year in early 2020, that now from the next 5 years, the biggest worry of company data is the employee. Employee is the biggest worry for the any company now, because you can't run the business without employee, your people. Okay, and the right now the threat for the data loss is maximum from the internal employee only. It's not because of they are trying to steal your data intentionally, might be unintentionally also. Okay, I will show you in the next slide. And many business suffer from the data loss because of human errors. That is the statistics are there with us, that many business as like fall into the ransomware attack or CEO fraud attack or any type of attack because of human issue, human errors. Because antivirus or anti-spam or any type of software will not able to means they are not able to restrict the CEO fraud attack or phishing attack. Okay, that attack should be understood by the people. And what we see, that if your data is in the threat, means if your data is in the threat, then responsible, you are also responsible, your employees, your business partners, and cyber attackers are the responsible for your data loss. And why we say everyone, you, even you also, because we are also not aware that what type of attacks are happening nowadays, because nobody is right now there in the market who provide us the knowledge that okay, so this type of scams are going on, or this if suppose you receive some type of mail, you how you find out this is a phishing mail or the CEO fraud attack or it's a normal mail. Okay, so nobody is given us the training right now, or education awareness training, nobody is given us, right? So how your business data is getting out of your control. So there are three ways the data is getting out of your control. Based on our research, we have created this product, we document that intentionally, means if your employee wants to copy your data intentionally, or they are sharing the data unintentional or accidental or lack of awareness. Okay. And third is your employees fall into the cyber attacks, employees or business partners. Okay. So now let me give you one, let me explain you that intentionally. So your employees might have a malicious intentions, or they want to take revenge, or they want to start the business, or they are changing the job. Like salespeople is a good example. When they join the job profile, they carry the sales data or customer data with them, and they join to the new company, and they still they try to the same customers because they already created the relation with them. Okay, and they think that there is that data, not the company data. Okay. Second example is that like unintentional or accidental loss of your data. You know that some of the names are very common, like Ashmit, Akshay, Himanshu, Anil, Vijay. There are multiple names are there in our in our society, which is common. And suppose your important document, customer data or some agreement is sent by your employee, and suppose he's sending to Vijay and some is sending to another Vijay, for example, or another Himanshu, then you know that once the mail is sent from your computer and another person is received, you can't take back now. You can't take back once he copied the data now. You can't take back. And that is not possible right now. Okay. And second thing, your employees are working on the important data, but they are not aware. They are important. They are not aware what to do with this type of data. So suppose they are putting, keep this data open. When they are, suppose in the organization, they put computer open, they allow anybody to access your computer, anything because they don't know about their data is important, and they are not aware how their data is getting stolen. Okay. And another problem is the falling into the cyber attack. Now the cyber attack is the biggest issue. And you know that people are like cyber attackers are constantly behind you to get into your system. They want to do the ransomware attack or might be different type of attack just to steal the data and take the money. Means they are asking for the ransom money, okay, for your data. Okay. Now, why do business needs to take control of your data? Why? Right. So data is your intellectual property, and data is your backbone of your business. And as I told you previously also, that in the digital world, you can't find out where the data is rest.
Okay, means your data is there in your computer and you don't know how many copies are created and how many copies are shared to someone or outside of the organization or within the organization. You can't find out that. And that is the biggest issue with the data right now in the digital world. Okay. And one more thing I want to ask, that if you think that your data, if you have a firewall or antivirus in your company, you think that data is secure. It's not, because your employee can share the data because you are providing them rights to share the data or copyrights, and they are able to work on the files, because you can't do that with, otherwise they can't work, right? So they are allowed to copy, share anything. You can't control them. This is the biggest issue right now with the companies. Okay, so we have highlighted here the problems right now, that what type of problems are there in the market. Now to come out with these problems, we have we have launched our product Secura. Okay, and in Secura we come out with the two solution. One is the technology and second is the education. Because if we introduce the technology and the education is not there, then not 100% we are going to safeguard our customers, right? Because if we implement the secure work, we secure your data, right? But if your employees are not aware or not educated by the phishing attack or social engineering attack, CEO fraud attack, latest scam or alerts or anything, they are not aware, right? Then even the Secura is there or other application is there, you might fall into the ransomware attack or phishing attack, and you lose money also. Because in a phishing attack, people are, they do the phishing attack in such a way, or CEO fraud attack in such a way, that they are changed the bank account details and people are transferring money to the other bank account. And this is not the technology issue, it's a human issue. And how we are going to sort out, and that's the reason we introduced this cyber shield, where what we do the mock attack with your employee, with you also. So you can find out, okay, you can learn what is the phishing attack, how the phishing attacks are going on, and how you can safeguard yourself, because we do the mock attack with you. Okay, and we also do the CEO fraud attack with you. So you can find out, okay, this is the phishing mail or CEO fraud attack mail, or what is this. Okay, we also provide you the tools to find out the weak points in your infrastructure. If your infrastructure has some leakages, we can find out the leakages of your infrastructure from our tool. Also, we provide you the training videos, checklist and other modules to, when they work on the important data, what to do, what not to do. The videos are like 2 to 5 minutes, small videos, which is giving them the education about the cyber security, email security, cloud data security, local data security, phishing attack, social engineering attack, where we have more than 200 different type of videos which we have created here in the cyber shield. Okay, we also created gaming modules so people can learn by playing games, okay, like KBC and something like that. We also provide you the quiz module. Okay, and after providing full training, we also do the assessment exam, and if your employee pass from the exam, we provide them a cyber security certificate also. So we are encouraging your employee that they can learn this, and which is important nowadays. Okay, and you can convert your employees into human cyber shield. That is our mission here. But for the Secura work, which is we are talking about, which is important part. So what we have done here in Secura work, whatever the data you create in your organization, like email, cloud or local files, that you create the file in Word, Excel, PowerPoint, any data you create, we lock at the source. Means when you save the file, we encrypt the file with the random keys. Okay, and what we have provided in our system, right, we provide you the admin control panel. Okay, which is whatever the data your employees are generating with is in your control, not with your employee control. So we provide you the audit log, access log, okay, who is allowed to do what, where, and how the data they are allowed to view. When you share any data, for example, I'm sending the mail through Secura. Okay, so for example, I'm sending the mail to Akshay. Okay, the mail will be encrypted and travel encrypted from my computer, my server to his server, and his server to his computer. And to read that data, he requires keys. And what we have done, Secura took Secura key transfer process we have created, which is secure and unique. Okay, where he is able to view my mail by default, but he's not allowed to copy, forward, edit, delete, print, anything. And I can take back my mail anytime with the Secura, sir. Okay, and this is the biggest advantage here.
So even you are sharing some important document to your employee, and which is just for verification or checking, they are not allowed to copy, forward, print screen, screen recording, anything there. That's not possible with our application. Okay. Yes, you can provide them the rights, and whatever the activity they are doing, we log that activity, and you can see that okay, your employees is share this file to how many people within the organization, outside the organization, how many people they share, what type of files they've created, where they saved in the removable device also, and you can also control their. We provide you USB lock, internet access control. This type of features we provide, where your employees are not allowed to copy the data. And even they copy the data, the data will no use, because to read the data, they require keys, and keys in your control. And that is the biggest advantage of our solution. And that's the reason the process of securing data, transporting keys, we have applied for the patent. This product is already applied for the patent. Okay. Now, in Secura Work, we provide you email security, we provide you cloud data security, we also provide you photo data security, because Secura is available in all the operating system. You can install Secura on your Windows machine, Mac machine, on your Android phone, iPhone, and Linux machine also. Okay. We also provide you instant messaging solutions. Why we provide the instant messaging solution? Because currently the organizations using the WhatsApp or Telegram or other medium, when their employees are left, the data is gone through that employee, or the device is getting lost, you don't have control to take back the data, right? But if you are using our instant messaging, your data is in your control. As an admin of the company, you can, or owner of the company, you can see any user internal chat. Like for example, Akshay is chatting with Ashmit, and I want to see his communication. I can check his communication as an admin of the company. Okay. That is the advantage here. And when suppose anybody left from the organization, I need to take back my data, I can just click app burn and account burn, then automatically the data will be taken and backup will be taken in my server automatically. So you don't have to worry about the data backup or anything with this product, sir. Okay. We also provide you local data security in your organization. Any data is generated locally, you can secure that easily. And anybody is, means suppose somebody try to copy, steal, anything they are trying to do, they won't able to do anything. And if they copy, even suppose employees have a rights to copy forward anything, and they copy the data and provide the data to someone else outside the organization, they won't able to do anything with your data. I will show you in the product actually. Okay. So in Secura, we provide the security while your data is in rest mode, data in action mode, and data in motion. Okay. So why I'm saying the rest mode means whatever the data is there in your mailbox or in device is stored, which is in hard drive or pen drive, we secure the data. Data in action means suppose somebody's open your files, open the files, read the documents or edit the documents, view the photo, video, anything. We secure the data at that time. We also secure the data while in motion. For example, you share the file within the organization or outside the organization, your data is secure with the Secura. Okay. So this is how we provide the data security, and these many features we have in Secura. So we provide in Secura take back, self-destruct, allow copy, allow forward, allow delete, allow print. We also provide you app burn feature. Suppose your employee's devices get lost, you can burn the device data automatically from this software. We also provide you audit trail report. We also provide you USB lock features. We also provide you IP-wise security. We also provide you private area. You can secure your data in the private area. Nobody will be able to view the private area, and which is required right now in the digital world, because your data should be kept in such a way that you are aware or your partner is aware, but not other people should be aware, where some data should be important. Because now, right now in SMEs, small, medium-sized companies, even as the owner of the company, they are not aware about the data, but their employees are aware about the data, which is in the risk. Okay. We also provide you ultra content protection, which is ultra content protection means we also provide you the features like you can do some settings with the department wise and group wise. So they are allowed to do certain activities and they are not allowed to do certain activity. So this type of features we provide in our Secura. Okay. So anybody has a questions, please ask. Anybody has a questions, please ask. Now presentation is over. So suppose anybody has a question, you can ask sir. एजुकेशन टू यूजर्स करके आपने बताया था, हाँ.
ये कैसा इंडिकेट करोगे हमारा यूजर्स को? Indicate karoge means indicate. Educate. Educate. Okay. So what we have done here, when you install the Secura, you will see the Cyber Shield is one of the tab. And what we do, we push the videos. Notification आता है आपको, जहाँ पे आपको वीडियो देखना है. 2 मिनट के वीडियो रहते हैं, 5 मिनट के वीडियो रहते हैं. I will show you the product demo video also, 1 or 2 if you want to see. Okay. एक वो एजुकेशन का एक दिखा दीजिए तो. कौन सा दिखाऊं मैं आपको? वो एजुकेशन का क्या? यस, एजुकेशन का मैं आपको दिखा देता हूँ. और दूसरा हम स्कैम अलर्ट भी भेजते हैं. मतलब आजकल डे टू डे जो स्कैम हो रहे हैं, तो स्कैम क्या हो रहे हैं, तो उसके अलर्ट भी आ जाते हैं. तो आपके एम्प्लॉय अवेयर रहेंगे. ओके, कोई अलर्ट मतलब स्कैम हो रहा है तो उनको पता है कि क्या करना है. ओके, एनी मोर क्वेश्चन सर? ये ईमेल कंट्रोल करके आपने बताया था एक. यस, ईमेल कंट्रोल. एनक्रिप्शन मोड में मान लो मैंने एक मेल भेजा था मेरा बॉस को, उसका एनक्रिप्शन हो गया, वो ट्रैवल हो गया उसके पास, फिर वापस एनक्रिप्शन मोड में गया, इसके बाद डिस्क्रिप्ट होके उसको दिख गया. परफेक्ट. इन केस उसके पास ये क्लाइंट नहीं है, सिक्योर क्लाइंट नहीं है, तब राइट, तब वो क्या कर सकता है? वेब व्यू में देख सकता है सर. वेब व्यू में देखेगा मतलब उनको ईमेल आएगा. नहीं, अभी समझो, आपको उसको मेल आया तो प्रोसेस क्या है कि उनको मेल आया, उन्होंने देखा, आउटलुक में देखा या गूगल में देखा या मोबाइल में देखा, बराबर, कहीं पे भी मेल तो देखेंगे, राइट सर? ओके, सो वो मेल जब भी ओपन करेंगे वहां पे ऑप्शन आएगा कि दिस इज सिक्योर मेल. ओके, इन ओटीपी विल बी सेंड टू हिज, वापस उनको एक मेल में ओटीपी आएगा टू रीड दैट मेल. ओटीपी कौन भेजेगा? वो ऑटोमेटिक सिक्योरा भेजेगा. अच्छा, मेरा मेल के साथ साथ एक ओटीपी भी पहुंच जाएगा उधर? हाँ, ओटीपी जाएगा. नहीं, जब भी वो मेल ओपन करेंगे तब ये ओटीपी जाएगा 30 सेकेंड वैलिडिटी वाला, जो उनको मिलेगा, और वो वापस मेल में जाके ओटीपी एंटर करेंगे तो वो मेल ऑनलाइन रीड कर पाएंगे, उनका कंटेंट रीड कर पाएंगे, लेकिन वो कंटेंट को कॉपी कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर आपने राइट्स दिया है कॉपी करने का तो कर पाएंगे. मतलब अपन मेल कंपोज करने के टाइम पे ही ये सारे ऑप्शंस चालू करके भेजना? यस, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाता है सर, आपको घड़ी करने का भी जरूरत नहीं होता. अच्छा, तो ये क्या ओनली क्लाइंट वाला में काम करेगा, वेब बेस्ड में भी काम करेगा? नहीं, मतलब आई मीन टू से, अभी आउटलुक एक तो आउटलुक क्लाइंट है, मान लो आउटलुक में काम करेगा सर. इन केस जीमेल में काम कर रहा हो तो सर गूगल, हम लोग वेब बेस्ड में नहीं करेगा, बिकॉज वेब बेस्ड में क्या होता है सर, सिक्योरिटी लैप्स हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू यूज द वेब बेस्ड देन इट्स अ प्रॉब्लम सर. ओके, दैट्स व्हाट आई यस सर. मतलब वेब बेस्ड में ये काम नहीं करेगा क्योंकि दैट इज नॉट आवर ओनरशिप ना. यस, आउटलुक में कर पाएंगे सर. और इवन हमारी सिक्योरा की एप्लीकेशन का आउटलुक में प्लगइन है, तो वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है आउटलुक में, और वहां से आप कर पाएंगे सर. और हमारा एप्लीकेशन भी है जहाँ पे भी आप ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. हमारे एप्लीकेशन में फायदा क्या है सर, कि आपको एम्प्लॉय को कोई ईमेल का पासवर्ड, क्लाउड का पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ता है. ईमेल का पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ता है. जैसे आपने एक एडमिन कंट्रोल पैनल में आपने ईमेल शेयर कर दिया, सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका ईमेल है ना सेट हो जाता है. हम लोग ने ऐसे प्रोसेस बनाए हुए हैं, तो उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है वहां पे. एनीवेज, अपना ईमेल सिक्योरिटी जो भी आपने जो बताया, ये सारे इन मतलब क्लाइंट बेस्ड वाला में ही काम करेगा? यस, सब बराबर, परफेक्ट. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके, and if you want to see, I will show you the one demo product video दिखा देता हूँ सर. हाँ, एक बार. Our mission is to put you back in control of your data. You have already heard of malware, hiding within downloads of websites or appearing in your inbox as a harmless-looking email attachment. While most malware are designed to steal your confidential data, there is a new, even more dangerous attack out there: ransomware. Ransomware encrypts files or holds a computer hostage by restricting the access. After the system is kidnapped, the cyber criminals demand ransom money to restore the files or unlock the computer. So how do hackers pull this off? Quite simple, by exploiting the most vulnerable part of the organization: you and your fellow employees. When paying, the ransom is not an option. What can you do? Prevention is the key. Think before you click. Be a little skeptical when you see download links or advertisements. A hacker could have created them.
don't open mail attachments from unidentified senders or someone you don't trust. Never enable macros in Office documents if you are not absolutely sure you know the sender. Never plug in USB devices from untrusted sources. Create regular backups of your data, but make sure you disconnect your external storage devices when not in use. If you follow these safeguards and report anything suspicious to your IT department right away, you do your part to protect us from ransomware. Be secure. Thank you, and be safe. Okay, sir. Have you saw the video, sir? ये अवेयरनेस तो मतलब ठीक है, इसके अगेंस्ट अपना सिक्योर प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ, वो बंदा काम नहीं, मतलब जानबूझ के भी क्लिक कर लिया मान लो, हाँ, तब बराबर। अपना प्रोडक्ट क्या करेगा? ओके, सो हमने प्रोडक्ट में क्या किया है कि फर्स्ट तो आपके जो कंप्यूटर में जो भी डेटा है ना, उसको हम पहले से एनक्रिप्ट करके रख देते हैं, तो रैंसमवेयर उसको डबल एनक्रिप्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग, हमने जो एनक्रिप्ट करके डेटा रखा है उसका क्लाउड बैकअप सॉल्यूशन भी देते हैं, ऑटो क्लाउड बैकअप सॉल्यूशन। मतलब आपका जो डेटा है, आपके ऑफिस में हम क्लाउड सर्वर बना के दे सकते हैं, प्लस सिक्योरा में हम पर यूजर 5 GB स्पेस देते हैं। ओके, वहां पे भी आप अपलोड करके रख सकते हैं। और आपके ऑफिस में कोई भी एक कंप्यूटर है, उसको हम क्लाउड सर्वर बना के देंगे तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज आपके ऑफिस में आपका डेटा सिक्योरिटी के साथ पड़ा रहेगा। वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे और वहां पे हमारा क्लाउड सर्वर बना के दे देंगे सर। जैसे अभी गूगल ड्राइव कैसे चल रहा है, वैसे हमारा क्लाउड सर्वर है, जहाँ पे आपका वर्जनिंग भी मेंटेन होता है। मतलब कि आपको अभी समझो कि आपने एक डॉक्यूमेंट 1 तारीख को चेंज किया और सेकंड को आपने वापस एडिट किया, और आपको चाहिए कि अरे फर्स्ट टाइप को जो मैंने काम किया था वो मुझे वापस चाहिए, तो आप है ना वहाँ पे वर्जन मैनेजर में जाके आप रिट्राइव कर सकते हैं डेटा हमारे क्लाउड सर्वर में। तो वैसे सब फीचर्स सारे यूनिट का यूजर्स का वो तो एक ही जगह पे स्टोर होता जाएगा। ओके, एक ही जगह पे स्टोर होता जाएगा ऑल द यूनिट्स का डेटा। और दूसरा कि ऑल द यूनिट्स कैन वर्क ऑनलाइन ऑल्सो, मतलब एक फाइल पे आप मल्टीपल लोग भी काम कर पाएंगे इसमें। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अगर एक फाइल में मैं काम कर रहा हूँ वर्ड की फाइल में और आपको भी काम करना है तो आप साथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे सिक्योरा में पॉसिबिलिटी है मल्टीपल लोग भी एक साथ काम कर पाएंगे विद सिक्योरिटी सर। तो फिर उसका शेयरिंग कैसे करूँ फिर मैं यूजर्स को? ये हमने एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ना सर, यहाँ पे लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूँ ना, सिंपल है। या जस्ट सो मेरे को ये, हाँ, कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, ओके, ये सिक्योरा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ईमेल दिख रहा है आपको? मुझे चेक कर लेने दीजिए, बिकॉज मेरा है ना स्क्रीन शेयरिंग और स्क्रीन वो। ओके, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, सी यू कैन सी द ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर, बिकॉज अगर मैं ये नहीं रखूंगा तो आपको मेरी स्क्रीन ही नहीं दिखेंगी। ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर, या बिकॉज अभी देखिए मैं करूंगा, आपको पीछे का देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया, पूरा हाइड हो गया होगा, अभी आपको दिखेगा। चेंज हो गया, वाइट हो गया। या सो दिस इज बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, तो मतलब कोई स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर कोई स्पाइंग सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में और आपका डेटा का कॉपी करना चाहता है, स्क्रीन कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, so this is the email software, so where you can see all my, I have configured 6 email accounts sir. You can see 6 email accounts I configured here. Okay, now when you compose the email, okay, when you compose the email, you can see the screen or you can see the blank screen or white screen. Blank screen, white screen, that's called white. Just let me restart the application just for a minute. I need to, because this sharing is the problem. Let me show. Let me start the application from the start. And we also provide you Outlook plugin also, sir. Let me show you that also till that is loading. So this is our mail, sir, Outlook, sir. In the Outlook, we provide this plugin, sir, Secura. Okay.
So this is how we provide you the security here, that you can open any mail, secure mail. Like for example, I have some mails which is secure. I can open that data also from mail data. Okay. So you can see this mail is received from Secura and this mail is encrypted. You can see the mail content is encrypted. Encrypted, yes. Yeah. So I can read through Secura only. So what we have done here, the key transport is the important work for our company. I mean, the key is the important role play in the secure hustle. Okay. Just a moment. I need to just enable the screen sharing mode because otherwise you won't be able to see my screen. Just a minute. And what we have done here, with Secura, we also provide you Secura Word, Excel, and PowerPoint also, sir. Okay. So you can use the Secura Word, Excel, PowerPoint or Microsoft Word, Excel, PowerPoint. But if you use our Word, Excel, and PowerPoint, the advantage here is, sir, the data, whatever the data your employees are generating, they are not allowed to copy, forward, share anything. Okay. And you can see this files are, some files are Secura extension and some file is open. So this file I was telling about, this is the Secura extension file. This is like Excel file. Okay. So let me open this Excel document here. Okay. Let me open this Excel file here. You can see the Excel file here. Now the data you can, and so that's what we do, sir. And the key is in your control. So suppose these files is copied by somebody else, you don't have to worry, sir. Okay. So that's the by default security we provide in Secura. It is works for XLS any file, any extension you, any office files, or even any files. If you want to add your custom files, they'll also you can add. So if you have their own software and you have your own application extension, that also you can secure. Okay. Now can you see my screen, right? Oh, now let me start again. So when I click on the compose mail, now you can see, right? Yes. Okay. So I'm just sending the mail from my one account to another account. Okay. Today's date. And when you see these options are here in the three dots, you can see when you share the mail, you can blink mail also. Use the blink mail, means 1 minute, means suppose I'm sending you the mail. Once you read the mail, automatically after 1 minute, mail will be deleted. After reading. Yeah, after reading. Anytime when you read, after 1 month or just now or anytime. Once you read the mail content, automatically it will get deleted. Okay. We also provide you the feature of password protect your side and your client side also. That feature is also we provide. Okay. Then we also provide the expiry also. If you want to set the expiry of the mail, you can set the expiry of the mail, sir, also. Okay. So I'm just sending the normal mail right now for the demo purpose. Now I will see here the mail is received or not received, just so now. So can you tell me if I wrongly send someone mail? Okay, yes, you can take back. So that can be deleted or after is there any time period? Okay, let me show you, sir. When you send any mail to Secura, गलती से मेल चला जाता है yes, और मुझे yes. वो डिलीट करना है और उसके पास पहुंच गया, तो is there any option कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. That's what I'm trying to show you. Can you see my screen? Yeah. Okay. So you can see when this is the mail I sent right now. मैंने अभी ये मेल भेजा, बराबर है? इसको मैं वहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन है, अप्लाई कंटेंट प्राइवेसी राइट्स, अप्लाई कंटेंट एक्स्ट्रा प्राइवेसी राइट. वहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइवेसी राइट में आई कैन टेक बैक मेल एनी टाइम. मैं किसी के पास से मेल वापस लेना मैं ले सकता हूँ. ओके. समझो कि मैंने 2 में 10 जन को भेजा है, तो 10 में से जिसको वापस लेना है उसके पास से वापस ले सकता हूँ.
तो इसका कोई टाइम वैलिडिटी होता है कि कोई इतने नहीं, टाइम कोई में करना है या कभी भी ले सकते हो, एनी टाइम। अगर वैलिडिटी अगर मतलब उसने ऑलरेडी वो पढ़ लिया तो फिर उसका वो पढ़ लिया है तो फिर भी आप वापस ले सकते हो, फिर भी बिकॉज आपने भेजा है लेकिन वो कॉपी नहीं कर पाएगा बाद में। ये सी अभी मैं पैसा- बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए मैंने मेल भेजा, मुझे टेस्ट मेल आ गया। ओके, आप देख पा रहे हो? जस्ट होल्ड ऑन, हाँ। ये ब्लैंक मोड में चला गया था। नाउ यू कैन सी दिस मेल आई रिसीव्ड, टेस्ट मेल। अभी मैं देखो, मैं इसको कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, ये मेल है मेरा, ये देखिए मैं कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ ना फॉरवर्ड भी कर पा रहा हूँ। यू कैन सी, या एक मिनट, ये देखिए मैं फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू फॉरवर्ड, इवन कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इवन मैं प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं कर पाऊंगा। राइट। ओके, सो आपका मेल भले रीड किया आपने उसने, लेकिन वो कॉपी नहीं बना पाएगा। नहीं, मुझे आपने आपके कंप्यूटर में क्लाइंट सिक्योर का था ना, यस यस प्लस ईमेल क्लाइंट भी आपका इंटरनल है। यस मैंने भेजा किसी जीमेल अकाउंट में। यस सर, ये मैंने जीमेल अकाउंट में भी भेजा। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं आपको जीमेल अकाउंट भी है मेरा, इट्स नॉट लाइक खाली मेरा इंटरनल है, मैं आपको दिखाता हूँ यू मीन जीमेल में, रिसिपेंट कहीं भी रिसीव करेगा, ये कहीं पे भी हो जाएगा, वो डिलीट कर देगा। यस यस। देखिए सर, ये मेल है मेरा, हाँ, टेस्ट में। ये जीमेल में आया मुझे। हाँ, ओके, अभी ये मेल को रीड करने के लिए की लगेगा, समझिए आप। ये डिलीट करना कैसे करते हैं, हमने क्या किया कि इसको रीड करने के लिए मुझे की चाहिए। हम क्या करते हैं, टेक बैक करेंगे ना, की चली जाएंगी। तो अभी ये मेल, वो इसके पास कंटेंट पड़ा है लेकिन कुछ काम का नहीं है, भले वो जीमेल में गया, याहू में गया, हॉटमेल में गया, एनी अकाउंट में गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज टू रीड दिस मेल हमने क्या किया, इसको 256 एज की, रैंडम की, और प्लस हमने उसका पब्लिक प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया हुआ है। हमारा पूरा प्रोसेस ही अलग है सिक्योरिटी का, मतलब ठीक है, आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैं मान लिया। बट आपने जब भी डिलीट का एक ऑप्शन दबा दिया उधर, हाँ मान लो गलती से हो गया करके रिवर्स मांग रहा है, तो जीमेल कैसे एक्सेप्ट करेगा कि आपका आप ऐसा? तो फिर कोई भी जाके डिलीट करता रहेगा फिर उसका सर्वर्स में नहीं जाके। नहीं नहीं, पहली बात सुनिए, हम मेल डिलीट नहीं करते। हम जीमेल के अकाउंट से आपका मेल डिलीट नहीं होगा, ये कंटेंट मेरा एज इट इज रहेगा। हाँ, लेकिन टू रीड दैट कंटेंट मुझे की चाहिए, की हमारे कंट्रोल में है ना सर। नहीं, अपन ने वो जो बैक मंगा रहा था ना, वो तो आप बता रहा था ना डिलीट हाँ, हो तो जाएगा। वो जो डिलीट हो जाएगा, मतलब कीज है ना उसके पास से नहीं रहेगी। अभी मैं आपको आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेल आया मेरे पास। ओके, हाँ हाँ, अभी ये मेरा, एक मिनट, ये हमारे पास मेरा रिफ्रेश करने में चला जाता है। अभी ये मेल है मेरे पास। ओके, अभी मैं रीड कर पा रहा हूँ। अभी ये जो मेल है वो मैं आपको जीमेल में ओपन करके दिखाया था, वही मेल है। हाँ, देखिए, हाँ, ये वही देखिए, वही है। वही मेल है, सेम मेल है, ऐसा नहीं कि अलग मेल है। ओके, ये ना स्क्रीन शेयरिंग में चला जाता है, सॉरी, जस्ट एक मिनट देख लेता हूँ, वापस आपका स्क्रीन चला गया। ओके, नाउ यू कैन सी दिस मेल है। अभी मेल में वापस लेता हूँ आपके सामने, सेंड आइटम में गया मैं। ओके, एक्स्ट्रा कंटेंट प्राइवेसी राइट्स में गया मैं, और टेक बैक किया मैंने, और मैंने वापस ले लिया इसको, हाँ, ले वापस ले लिया। अभी देखेंगे ना, यहाँ पे जाऊंगा मैं मेल के ऊपर, मुझे यहाँ पे रीड करने जाऊंगा, मुझे क्या एरर देगा, की इज मिसिंग, दिख रहा है आपको? एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? ओके, जस्ट होल्ड नहीं नहीं, जीमेल का नहीं दिखा। एक मिनट, नहीं हाँ, नहीं, एक कल मिनट, आप ये देखिए, हाँ, अभी दिख रहा। ये क्या आ गया, की इज मिसिंग। is missing, ओके, डन। तो उसका उधर उधर जीमेल में, जीमेल में एज इट इज रहेगा सर, ये जीमेल में एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब आपके पास कंटेंट पड़ा है लेकिन उसको रीड करने के लिए की का कंट्रोल किया है हमने सर। मतलब ये क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है मेल को। यस यस सर, हाँ, डिलीट नहीं होता है, बट दैट इज एनक्रिप्टेड। यस, एंड की का हमने कंट्रोल रखा है आपके पास। मतलब आप कभी भी की किसके पास, इवन आपके एम्प्लॉय के पास भी डेटा पड़ा है ना, वो डेटा हाँ। कॉपी करके कितना भी लेके जाएगा घर पे, लेकिन तो की उसके आपके कंट्रोल में है। तो आप जब भी की वापस ले लेंगे, उसके पास कोई डेटा नहीं रहेगा, खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा वो डेटा के साथ। तो मतलब उस सर्वर में दोबारा एक की जा रही है इसको ब्लॉक करने के लिए। यस 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 यस, और की आपके कंट्रोल में है। मतलब इवन एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने डेवलपमेंट किया, हमारे पास भी कंट्रोल में नहीं है, आपके पास कंट्रोल है। हम आपके कोई भी डेटा रीड नहीं कर सकते, बिकॉज हम जीरो नॉलेज पॉलिसी होल्ड करते हैं। हमारे पास कोई भी कस्टमर का कोई भी डेटा नहीं रहता, जो भी डेटा कस्टमर का रहता है कस्टमर के पास ही रहता है। नहीं, बट आप इनक्रिप्ट तो कर रहे हैं ना डेटा को।
हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, लेकिन एनक्रिप्ट की क्या कंट्रोल पे हमारा एप्लीकेशन है, लेकिन की जो एनक्रिप्टेड पड़ी है वो आपके पास पड़ी है सर, हमारे पास नहीं है। तो अपना सर्वर से, लोकल सर्वर से जा रहे यस यस, आपके सर्वर से जा रहा है। हैं। इसके लिए लोकल में एक ऑन प्रीमिस सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम आपको चाहिए तो करके दे सकते हैं, लेकिन हम सिक्योरा में ये भी फीचर देते हैं कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे हम आपको देखेंगे क्लाउड फीचर है, ये क्लाउड दिख रहा है आपको, मैं क्लाउड फीचर है ओपन कर रहा हूँ। मैप्स, अच्छा अभी ये देखिए, ये क्लाउड है जहाँ पे आप गूगल ड्राइव भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे मैंने गूगल ड्राइव कॉन्फ़िगर किया, ड्रॉपबॉक्स भी है, और सिक्योरा क्लाउड तो देते हैं जहाँ पे हमने हमारा तो 5 GB स्पेस देते हैं पर यूजर, और हमारे ऑफिस में जैसे देखिए मैंने कस्टम क्लाउड बना के रखा है, तो आप आपका भी कस्टम क्लाउड डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, मैंने वो फ्लेवर्स मांग रहा हूँ कि मेरे पास 150 यूजर्स है, हाँ, तो आप मुझे सोल्यूशन कैसे दोगे कि ऑन प्रीमिसेस दोगे, सब ऑन प्रीमाइसिस में आएगा सर, और सब ऑन प्रीमिस में एक सर्वर इंस्टॉलेशन होगा। यस, ऑन प्रीमाइसिस में एक सर्वर हम कर देंगे जहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे हाँ। आपका एक क्लाउड सर्वर बना देंगे सर। अच्छा, उसी को बोल रहे हैं आपने, डाटा बैकअप भी उसी को यूज कर सकते उसी के अंदर सब कुछ यहाँ पे रहेगा सर, और वो क्लाउड सर्वर अपनी का जगह बैकअप आप है ना सिंक कर सकते हैं। हाँ, वो स्पेस cloud दे का- दिया तो उसी में होता रहेगा। परफेक्ट। आपने जो भी 1 TB 2 TB या 5 TB का हार्ड ड्राइव डाल दिया, उसके हिसाब से हाँ। So that is actually may integrate these things only in the IMAP, pop-up and all the mailboxes. ब्राउजर बेस्ड में नहीं होगा आपका ये सोल्यूशन। हाँ, वो तो पहले मना किया ना। नहीं, ब्राउजर बेस्ड नहीं होगा सर, बिकॉज सी हमारा सॉल्यूशन इसलिए तो हमारा मोबाइल में भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, तो अगर आपको मोबाइल में भी यूज करना तो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, और वो उसमें क्या है सर, आपका कंट्रोल रहेगा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारा यूनिट पूरा जीमेल यूज करता है। हम भी यूज करें जीमेल सर, दिस इज योर जीमेल अकाउंट, यू कैन सी दिस, मैं कंपनी का अकाउंट है मेरा, ये देखिए हिमांशु सुजल टेक्नोलॉजीज, हमारा सॉफ्टलिंक का भी है, मतलब अलग अलग कंपनी के हमारे अकाउंट है, YW इंटरनेट, बहुत सारे अकाउंट है। डायरेक्ट वेब एक्सेस का ही परमिशन दिया हुआ है, किसी का IMAP प्रोवाइड दिया ही नहीं है। बट सर अभी आप सिक्योरा यूज करेंगे तो आपको टेंशन नहीं है, क्यों मालूम है सर, हम आपको एडमिन कंट्रोल पैनल जो देते हैं ना, वहां पे आपको सबको पासवर्ड, अभी तो आपने पासवर्ड दे दिया है, मतलब कि वो लोग कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका कंट्रोल है नहीं सर तो वेब दिया इसलिए ना, वो बंदा कहीं पे भी लॉग इन करके हाँ तो लेकिन सर वही तो बोल रहा हूँ कि अगर उसको सिक्योरा भी यूज करे तो कहीं से भी काम कर सकता है, उनके मोबाइल में भी काम कर सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आउटलुक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना आपके। नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होता है। सी दिस इज अवर एडमिन कंट्रोल पैनल, okay, where you can set up your employees, you can see the employee management system where what we provide you an option, configure email account में जाता हूँ, for example I'm going to the configure email account where you can add the employee email account here only, okay, और उसका यूजर ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे ही सेट करना है सर, ओके, और उसको पासवर्ड शेयर ही नहीं करना है, उसको क्या शेयर करना है, उसको पिन नंबर शेयर करना है उसका, ये देखिए ये पिन है ना, व्यू एम्प्लॉय पिन, दिस पिन यू नीड टू शेयर विथ योर एम्प्लॉय, नथिंग एल्स, एंड उसका जो डिवाइस है, ये डिवाइस वाइज आपको उसको OTP जनरेट करके दे सकते हो, फॉर एग्जांपल इज यूजिंग ऑन एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप, उसके वाइज आप उसको OTP दे सकते हो सर, ऑफिस में। ओके, फिर वो कैसे एक्सेस करेगा, उसको क्या करना है, उसको जो डिवाइस में डालेगा ना पिन का ना, वो इंस्टॉल करेगा ना, उसके बाद OTP पूछा जाएगा सर, और OTP आपको यहाँ से जनरेट करके देना है उसको, ठीक है, वो तो जीमेल एक्सेस हो जाएगा उसका, यस उसका हो जाएगा, सीधा एक्सेस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा सर। मेल कर दो मेरे को, कॉन्फ़िगर हो जाएगा मतलब आउटलुक में कॉन्फ़िगर होगा, ये कह रहा है ना, या आउटलुक नहीं, लोटस हमारा 5 को क्या करना उसमें, सिक्योरा में करेगा सर। मैं ये समझा नहीं यार भाई कैसा। एक मिनट में आप, सॉरी, हेलो अनम्यूट कीजिए, मेरे बाय मिस्टेक मेरे से म्यूट हो गया, हेलो कैन यू सर अनम्यूट योरसेल्फ सर, हाँ सॉरी, ओके, सो कैसे होता है, मैं आपको है ना, अगर ये कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे देखोगे ना, ये एम्प्लॉय है सर, उसका ईमेल जो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है ना सर, कहाँ किया, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक मिनट में आपको एक काम करता हूँ, और एक मैं आपको और एक एडमिन कंट्रोल पैनल दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने हमारे जो बहुत सारे एम्प्लॉयज के कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लेट मी शो यू दैट आल्सो, जैसे हमारे 350 एम्प्लॉयज है, एडमिन पीसी, दिस इज द एडमिन पीसी, आई विल शो यू राइट नाउ। अभी आपने मेरा कंप्यूटर दिख रहा है,
ये मेरे 6 ईमेल अकाउंट दिख रहे हैं आपको? अच्छे ईमेल अकाउंट दिख रहा है। दिख रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कॉन्फ़िगर हुए हैं ऑटोमेटिकली, वो आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए सर, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एडमिन कंट्रोल पैनल है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए एक्टिव 359 यूजर्स है हमारे, और उसमें से मैं आपको हिमांशु का मैं दिखा रहा हूँ, हिमांशु मोदी, ये 2 है, हिमांशु त्रिवेदी भी और मोदी भी है। अभी यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर ईमेल अकाउंट्स है, यहाँ पे दिख रहे मेरे 6 के 6 ईमेल अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है सर, दिख रहा है हिमांशु @सुजल टेक्नोलॉजी सिक्योरा.com, ये सब, और ये ईमेल मेरे ऑटोमेटिक यहाँ पे आए हैं। ओके सर ये सब मेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि एडमिन ने यहाँ पे सेटअप किया, और इसके सबके पासवर्ड यहाँ पे ही सेट है। अभी देखिए पासवर्ड मेरा सुजल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सेट है, इधर सेट है, मतलब आपको वो पासवर्ड एम्प्लॉय को देना ही नहीं है, यहाँ पे ही सेट करना है आपको। आपको क्लियर हुआ सर अभी? मतलब ये क्लाइंट विश्लेषण करने के बाद ये एक ऐप है। हाँ, मतलब ये क्लाइंट है ना, Secura। सिक्योर है, मतलब सर कैसा है कि आपके जो एम्प्लॉय है ना, उसको आपको क्या, उनको कुछ देना ही नहीं है पासवर्ड या कुछ भी नहीं देना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका कंट्रोल है फुल। उनको यहाँ से ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया ऑटोमेटिक, वहां पे मैं एक ईमेल रिमूव करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे यहाँ से एक ईमेल रिमूव हो जाएगा, ऐड करूंगा नया ईमेल ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए इनकेस उसके पास लैपटॉप जो भी अपन ने सिक्योरा इंस्टॉलेशन करके दे दिया ऑफिशियल को, वो उसके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, बट ही नीड टू आंसर वन इंपॉर्टेंट मेल, तो देन मोबाइल में है ना सर, मोबाइल तो आज सबके पास है, मोबाइल तो में मोबाइल में डायरेक्ट जीमेल एक्सेस करके उसको पासवर्ड मिल जाएगा। में मोबाइल में सर सिक्योरा इंस्टॉल हो जाएगा, बिकॉज मोबाइल में भी सिक्योरा अवेलेबल है सर। सिक्योरा इज अवेलेबल इन ऑल्सो मोबाइल सर। प्ले स्टोर में आप जाओगे, उसमें जाके आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप करोगे, या एप्पल स्टोर में भी जाओगे सिक्योरा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर। देखिए सिक्योरा वर्क, ये रहा, दिख रहा है सर, ये एप्लीकेशन है हमारा, ये दिखेगा, वहां पे दिख जाएगा ऐसा, ईमेल वहां पे रीड कर पाएगा, सब कुछ यहाँ पे है सर। ये वाला मोबाइल वाला फ्री है, ये भी लाइसेंस बेस्ड है? ओके सर, ये हमारा जो यूजर बेस्ड लाइसेंस है, एक यूजर है ना 3 डिवाइस पैरेलल चला सकता है। ओके, 3 डिवाइस में पैरेलल चला सकता है, मतलब कंप्यूटर में, मोबाइल में और अपना लैपटॉप अगर कुछ, तीनों में चला सकता है। ओके, ओके, और तीनों सिंक रहेगा, आप समझ रहे हो? ये एक्चुअली में ये मोबाइल में आपका जो पॉपअप मेल पॉपअप होगा, क्लाइंट वो क्या होगा, आपका सिक्योरा ही होगा या मतलब सिक्योर होगा सर, ये हमारा सिक्योरा के एप्लीकेशन है अंदर ही हमें अपना मेल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? सर कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक हो जाएगा मोबाइल में भी, आपको खाली इसको है ना नहीं, अभी जैसे हम गूगल एप्स यूज करते हैं, ठीक है, Yes. So there is a option just putting the mail ID and password, तो वो हमारा गूगल जीमेल का जो ऐप होता है उसमें एक्सेस हो जाता है। परफेक्ट। तो उसके अंदर काम नहीं करेगा ये, हमें सिक्योर ही डालना पड़ेगा उसमें। यस सर, परफेक्ट सर। ओके, परफेक्ट सर। So it's a syncing directly from the server, or what? It's a downloading on the mails on सिक्योरा सर्वर और नहीं, हमारा जो एप्लीकेशन है ना सर, इट्स एप्लीकेशन है, इट्स लाइक आउटलुक सर। आउटलुक जैसे कैसे एप्लीकेशन है जहाँ पे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। आउटलुक में एक्चुअली में वंस वी आर पॉपिंग द मेल्स दैट इज स्टोरिंग ऑन लोकल डिवाइस, ठीक है। आई मैप में करते हैं तो दैट इज शोइंग ऑन द क्लाउड। राइट सर। उस कंडीशन में मतलब हमें एक तरह से हमें सिक्योरा का क्लाइंट के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा। परफेक्ट सर, सिक्योरा क्लाइंट के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, आपका डेटा को सिक्योरिटी के साथ वो दिखाएगा। इवन वो प्रिंट स्क्रीन शेयरिंग कुछ नहीं कर सकता है सर। इवन मोबाइल में भी अगर वो उसको है ना प्रिंट स्क्रीन लेना नहीं कर पाएगा सर, ऐसा है सर। ओके, ठीक है, मतलब आपका जो सोल्यूशन है दैट इज बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर का एप्लीकेशन है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, या तो लोकल थर्ड पार्टी क्लाइंट होना चाहिए, या फिर आपका सिक्योरा का जो भी सोल्यूशन है दैट विल बी उसके साथ इंटीग्रेट होगा। यस सर, परफेक्ट, सही है, वो परफेक्ट सर। क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए सिक्योरा खुद एक क्लाइंट बन के काम करवा रहा है पूरा सिक्योरिटी के साथ। परफेक्ट सर।
क्योंकि वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जीमेल वाला क्यों अंदर आने देगा। तो मोबाइल्स में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं इन केस अगर मेरा मोबाइल लॉस हो गया तो दैट कैन वी वाइप आउट द डेटा यस सर और ब्लॉक कर सकते हैं सब कुछ। यस सर वही तो बोल रहा हूँ कि आपका जो डिवाइस, अगर मोबाइल डिवाइस आपका जो हो गया तो आप वाइप आउट कर सकते हैं सर। अच्छा, तो दिस सोल्यूशन विल मोबाइल पे भी सपोर्ट करेगा, डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप्स एंड आई मैक का यस, वो मैक में भी करेगा। हमारा सब टाइप की सर, हमारा जो है ना, सब में हमारा सिक्योरा का सॉल्यूशन है। मतलब सब ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरा में आप जाओगे ना सर, तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारा सेटअप है सर। जैसे अभी मैं सिंपल यहाँ पे दिखाता हूँ ना सर, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और विंडोज और मैक मशीन। अभी मुझे विंडोज और मैक में गया मैं, तो देखिए सर यहाँ पे जाएंगे तो ये डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के लिए आ गया, और ये विंडोज के लिए और मैक के लिए भी डाउनलोड हो गया। ओके, और ये लिनक्स कंप्यूटर से तो लिनक्स में भी है सर, लिनक्स का भी सेटअप है सर। हेलो अवधेश जी पूछ लीजिए। देखिए अभी हमारा फाइन। एक्चुअली में अगर हम मान लीजिए नेटवर्क्स पे कोई डेटा कॉपी कर लिया है अपने डिवाइस पे, हाँ अगर हमें उसे ब्लॉक करना है तो दैट कैन बी ब्लॉक। यस सर, मतलब से हम यूएसबी ब्लॉक देते हैं, मतलब आप बैठे बैठे यूएसबी ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए किसी ने मेरे से डेटा कॉपी कर लिया, मुझे पता चला कि किसी ने, तो हाँ। हम उसको क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ सर, हम क्या करते हैं सिक्योरा के अंदर, क्या करते हैं जो भी आपकी फाइल्स है ना उसको सिक्योरा एक्सटेंशन बना देते हैं। ओके, वो अभी ये फाइल सिक्योरा एक्सटेंशन वाली आ गई, मतलब कि क्या होगा कि ये कोई भी यूजर है ना उसका डेटा कॉपी करके लेके गया ना, अभी समझो कि ये फाइल में आपको इंपोर्टेंट मेरा कोई डेटा है, मैं आपको दे दूं, ओके, लेकिन आप जब ये ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन होती है। अभी ये एक्सेल फाइल है, एक मिनट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ। यस हो गया। अभी ये देखिए सर, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके लेके गया, समझो आपके पास से फाइल है जी, ओके। सो ये फाइल का डेटा मुझे ऐसे दिखेगा। कैसे इसका एक्सटेंशन एक्सेल एसएक्स है तो हाँ डॉट सिक्योरा नहीं है तब सर, मैं आपको बताता हूँ सर, ऑटोमेटिक सिक्योरा हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको फीचर देते हैं सर, अल्ट्रा कंटेंट प्रोटेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे उनके हार्ड ड्राइव और लोकल में आप जो भी है ना, जो भी उसके यहाँ पे एक्सटेंशन आप बोलोगे ना एक्सेल एस, ये ऑटोमेटिक सिक्योर हो जाएगा। ओके, फाइन फाइन, जहां जहां हम इनेबल कर देंगे वो सारा सिक्योरा फॉर्मेट में आ जाएगा। परफेक्ट सर। तो उसको ओपन करने के लिए क्या मतलब की देंगे, कैसे करेंगे? सिक्योर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, ये फाइल सिक्योर है, मैं आपके सामने ओपन किया, अभी मुझे ओपन करनी है, तो मुझे सिक्योरा में सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है, देखिए सर, उसके अंदर मैं ओपन करूंगा अभी आपके सामने। एक मिनट में उसको आपको शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन मेरी, क्योंकि ब्लैंक रहेगा। ओके, नाउ यू कैन सी सी ड्राइव एंड एफ ड्राइव। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और डेमो टेस्ट फोल्डर में अभी जो फाइल आपको दिखा रहा था मैं, वो फाइल में अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ सिक्योर आके थ्रू। ओके, अभी ये देखिए ओपन हो जाएगी यहाँ पे सिक्योर आके थ्रू, और वो रीड भी कर पाऊंगा। और मैं, लेकिन उसमें ये भी फायदा, मैं उसको कॉपी फॉरवर्ड कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन लाइट हो गया नहीं, अच्छा ये आपको नहीं दिखेगा, स्क्रीन शेयरिंग रहेगा, ओह शिट, ब्लॉक रहेगा। आपको दिख रहा है ये प्राइवेट स्ट्रीम दिख रहा है आपको, सिक्योरा ऑफिस शीट, स्ट्रीम रिमूव ये ऑफिस शीट दिख रहा है, ये मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है। हां एक्सेल शीट दिख रहा है। ये देखिए अभी मेरा सर्वर का पूरा इंफॉर्मेशन वाला फाइल है ये। अभी वो बाहर ओपन किया था मैंने, अभी ये देखिए एक्सेल में ओपन किया था तो ऐसा दिख रहा था ये, लेकिन सिक्योरा में ओपन किया, देखिए सिक्योरा के थ्रू ओपन किया, मैं बराबर रीड कर पा रहा हूँ। और इवन सर इसको देखिए ब्लॉक कर सकते हैं, सेव एज, प्रिंट, सब कुछ ब्लॉक कर सकते हैं। दिख रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मुझे चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरा एक्चुअली मतलब ये है कि अगर मैंने अपना एक्सेल इनेबल कर रखा है, सिक्योरा का सिक्योरिटी लगा रखा है, यस, मैं जिसको भी फॉरवर्ड करूंगा ऐसे विजिबल नहीं होगा, उसको सिक्योरा के अंदर ओपन करना पड़ेगा या देयर इज सम अनलॉक की? नहीं, उसको सिक्योरा के थ्रू ही ओपन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब उसको इजी रहेगा, मतलब उसको कोई की एंटर करना ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सिक्योरा में उसको दिखेगा और सिक्योरा से सीधा ओपन करना है।
उसके पास सिक्योर नहीं है तब नहीं है, तब क्या हाँ। करना है? नहीं नहीं, अभी नहीं है तो सर पहले तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो फाइल्स है, दो सिनेरियो है सर, बराबर है। एक है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास सबके पास सिक्योर होने वाला है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप किसी को शेयर कर रहे हैं, बराबर है। अभी मैंने ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया तो हम लोग सिक्योर रीडर देते हैं, व्यूअर, वो अच्छा। यहाँ से उसको डाउनलोड फ्री में कर सकता है और वो फाइल वो रीड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर व्यूअर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उसको, या उसको फिर व्यूअर इंस्टॉल व्यूअर करना करना? पड़ेगा। यस यस, उसको सिक्योर व्यूअर, जैसे इसका अभी आप मतलब अब WhatsApp, एक्सएलएस फॉर्मेट में जाएगा नहीं है? हाँ, और सीधा ओपन ही नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपके पास चॉइस भी है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, सिंपल चॉइस में आपको बताता हूँ। अभी ये फाइल है, ये एनक्रिप्टेड है, सिक्योर है, इसको मैंने दिखा कि सेंड ईमेल एज अटैचमेंट किया मैंने। Okay. अभी मैं आपको बताता हूँ, सेंड ईमेल एज अटैचमेंट किया और मैं अभी किसी को शेयर कर रहा हूँ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेल है, ओके। और मैंने टेस्ट मेल लिखा मैंने। अभी मैं जब भी सेंड करने जाऊंगा तो मुझे ऑप्शन पूछेगा कि सेंड एनक्रिप्टेड और सेंड विदाउट एनक्रिप्शन। ओके, विदाउट कर लिया था उसको सीधा सीधा एक्सएलएस खुल जाएगा। हाँ, तो सीधा सीधा खुल जाएगा। आपके हाथ में चॉइस है सर, और ये भी चॉइस आप दे सकते हैं जिस एम्प्लॉय को देना है, नहीं देना है तो नहीं दे सकते। और इसका लॉग भी मेंटेन होता है, तो आप देख सकते हैं कितने लोगों ने ये ओपन मेल भेजा, कितने लोगों ने सिक्योर मेल भेजा, ये रिकॉर्ड होता जाएगा। ये रिकॉर्ड भी होता है। ठीक है, फाइन। ठीक है। और क्या अवधेश जी, और इसमें बेसिकली क्लिप बोर्ड का देख लीजिए, स्क्रीन का कोई कैप्चर करना चाहता है, प्रिंट स्क्रीन वगैरह, दैट विल बी आल्सो कंट्रोल। यस सर, वही तो बता रहा हूँ सर। ये देखिए, अभी मैं आपको, ये मेरा है ना स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा ईमेल स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ हाँ, अभी मैं देखिए, मैंने ऑन किया, अभी स्क्रीन कैप्चर बंद कर दिया मैंने, अभी देख रहे हैं ब्लैंक हो गया सर। ओके ओके। अभी मैं स्नीपिंग टूल से भी करता हूँ, एक मिनट सर, स्नीपिंग टूल चालू करता हूँ मैं। ओके, स्नीपिंग टूल मैंने चालू किया, अभी उसमें देखिए मुझे वो नहीं दिख रहा है, मुझे क्या आ रहा है, वो ब्लैंक स्क्रीन मुझे दिख रही थी। हाँ हाँ, लेकिन अभी देखिए, अभी मैंने ओपन किया, ये देखिए मुझे कैसे दिख रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसे दिख रहा था, लेकिन जब भी मैंने स्नीपिंग टूल से किया मुझे वो ब्लैंक हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया था मेरे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि सपोज हमने कोई किसी को स्क्रीन शेयर किया, राइट, एनी डेस्क पे किया या किसी टूल्स के थ्रू, वेब एप्स के थ्रू किया, प्रेजेंटेशन चल रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रेजेंटेशन का कोई स्क्रीनशॉट ले, हाउ दैट कैन बी? ओके, फर्स्ट थिंग सर, अगर मैं अभी आपको शेयर किया है, बराबर है, तो आप वो फिर प्रिंट स्क्रीन देख सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको अलाउ किया शेयर करने के लिए। ओके, बिकॉज अभी मैं रोक नहीं, या दैट कैन बी ब्लॉक, बिकॉज अब मैंने आपको दे दिया है ना सर, शेयरिंग कर दिया, फिर मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मेरा बाय डिफॉल्ट स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगा सर। ओके, वो क्लिपबोर्ड वाला, मैं आपको क्लिपबोर्ड का भी बताता हूँ सर। ये देखिए, अभी ये फाइल मेरी ओपन हुई है यहाँ पे सिक्योरा की। अभी ये एक्सेल फाइल का डेटा भी देखिए मैंने सिलेक्ट किया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसका डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैंने इसे कॉपी बटन दबाया। अभी देखिए मैं नया नोटपैड में डाल देता हूँ, मैं नोटपैड करके वहां पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पेस्ट करने ही नहीं देगा मुझे, लेकिन हाँ, ये मेरा एक्सेल का डेटा है, एक्सेल में कोई डेटा है और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ और वो पेस्ट करना चाहता हूँ तो करने देगा मुझे। देखिए दिख रहा है, ये कर रहा है, लेकिन सिक्योरा के अंदर नहीं करने देगा। वो बंदा उधर से तो लेके जाएगा। उधर से क्या से लेके जाएगा सर? एक्सेल का, एक्सेल का डेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर वो कर रहा है काम, वो काम कर पाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा सर। अपना कंप्यूटर में है कि मान लो अभी इसमें सिक्योर के थ्रू आप कॉपी नहीं कर पा रहा है, राइट, बट आपका कंप्यूटर में तो एक्सेल तो नॉर्मली खुलेगा। हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारे पास दो ऑप्शन है कि जहाँ पे अगर आप सिक्योरा का एक्सेल देते हो तो उसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है, अगर एक्सेल करते हो तो वहां पे वो कॉपी कर पाएगा, लेकिन हाँ दूसरा बात है कि वो जब भी पेस्ट करेगा और जहाँ पे सेव करेगा ऑटो एनक्रिप्ट हो जाएगा वो फाइल से।
हो जाएगा। मुझे ये पता चलना चाहिए मेरा अकाउंट स्ट्रीम है ना, कंपनी का बैंक अकाउंट और पैन कार्ड और जो भी यस गवर्नमेंट डिटेल्स है यस वो अपना एक्सेल में मेंटेन करता है सब लोग। राइट राइट सर ठीक है, उधर से कॉपी कर लिया, मेल में अटैच करके भेज रहा है, राइट वो रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। यस यार वो मिल जाएगा सर। हमारा अभी है ना और एक फीचर हम लोग ऐड कर रहे हैं डेटा क्लासिफिकेशन का। तो आपने जैसे बताया ना, तो हमारे पास 4 टाइप के आपके कंपनी में डेटा होगा, जो प्रोटेक्टेड रहेगा, जो प्राइवेट रहेगा, पब्लिक रहेगा, और रहेगा कि जो एकदम सिक्योर होना चाहिए, जो मतलब किसी को भी शेयर करने का अलाउ नहीं होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही शेयर कर सकते हैं, वैसे भी डेटा रहेगा। बराबर है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो क्लासीफाई करेगा कि बैंक अकाउंट डिटेल आ गया, पैन कार्ड डिटेल आ गया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्लासीफाई हो जाएगा। और जब भी कोई किसी को शेयर करने जाएगा, अगर उसके पास राइट्स होगा तो ही कर पाएगा, और शेयर करेगा तो आपको अलर्ट भी जाएगा कि आप ये एम्प्लॉय ने ये ईमेल हाँ, आपको अभी भेजा। वो अलर्ट monitoring से चाहिए। हम लोग ऐड कर रहे हैं सर। हमारा 1.5 महीने में आने वाला है ये फीचर। ये हम लोग अंडर yes, प्रोसेस में। यस यस अंडर डेवलपमेंट क्योंकि में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ब्लॉक तो नहीं कर सकता है। Yes. पहला अपन मॉनिटर करेंगे कि कौन भेज रहा है, ये सही भेज Perfect, रहा है या perfect. नहीं भेज। इन केस अपन को Perfect. लगता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं यार इन्हें को नहीं भेजना चाहिए, इस टीम को पूरा बंद कर दो, तब अपन तो- ब्लॉक करने के लिए भी प्रिविलेज चाहिए। यस सर। जैसे अभी मैं आपको बताऊं ना कि अभी हमने क्या किया है, हमारे सिस्टम में क्या किया है कि अभी हिमांशु मोदी है, उनको मुझे अभी समझो कि एक्सटर्नल ईमेल भेजने को बंद करना है, तो सेंड राइट्स है एक्सटर्नल ईमेल का। ओके, तो अभी एक्सटर्नल ईमेल सिक्योरा के साथ भेजने का अभी मेरा एनी यूजर है, मैंने ये बंद करके स्पेसिफिक यूजर किया, तो जो स्पेसिफिक यूजर मैं सिलेक्ट करूंगा उसको ही जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। वो सब फीचर अभी है, लेकिन अभी हम लोग और एक फीचर डाल रहे हैं जो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन। स्पेस क्लासिफिकेशन डाल रहे हैं, वो विच इज इम्पोर्टेंट सर राइट नाउ। वो अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स ज्यादा जा रहा है। यस सर परफेक्ट है सर। इम्पोर्टेंट। एनी मोर क्वेश्चन सर? बढ़िया है, कुछ हम बता देंगे, कुछ चाहिए तो फिर उसी को। और सर ये पूरा हमने इन हाउस बनाया हुआ, ये अपना सॉफ्टवेयर 5 साल लगा है यहाँ पे बॉम्बे में सर, बॉम्बे में ही। ओके, और ये सॉफ्टवेयर के पीछे हमारी कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट 35 CR का किया हुआ है सर, मोर देन दैट 35 CR। अभी आप क्या कितना कस्टमर्स है अपने पास? सर हमारे पास अभी करंटली कस्टमर्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन मैं आपको मेन कस्टमर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। इफ्तास करके कंपनी है, इंडियन टेक्नोलॉजी, अपना ये गवर्नमेंट RBI का कंपनी है, इफ्तास.in। इफ्तास करके है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये सब्सिडरी कंपनी है। ओके, वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। फिर हमारे पास अभी कर रहा है इधर। हाँ ये कर रहा है सर। अभी हमारा 1 बजे उधर डेमो ही है, वो लोग का मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी खाली हमारा प्रोडक्ट डेमो है, मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। फिर हमारा NCRTC में हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है सर। ओके, सो ये मैं बताऊं कि मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी हमारे साथ है सर, और बहुत सारे CA हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करें, बिकॉज हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि वन मोर फीचर है कि टैली को भी डेटा सिक्योर करना है आपका। समझो कि मेरे कंप्यूटर में टैली का डेटा है, वो भी आप यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं, और बैकअप सॉल्यूशन भी है। तो वो लोग ज्यादातर हमारे सॉफ्टवेयर सब टैली के सॉफ्टवेयर जो सिक्योर करना चाहते हैं ना डेटा, वो लोग भी बहुत लोग हैं सर। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे कंप्यूटर में देखिए टैली का फोल्डर है, यहाँ पे डेटा फोल्डर ओपन है, कोई भी कॉपी करके लेके जा सकता है। तो इसको मैं एनक्रिप्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज एनक्रिप्ट करूंगा तो टैली नहीं चलेगा। बराबर है। तो हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे एक सेटिंग्स मॉड्यूल है जहाँ पे हमने आपको फीचर दिया है सिक्योरिटी का, फोल्डर लॉक सिक्योरिटी। आप कोई भी फोल्डर सिक्योर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने प्राइवेसी सेटिंग्स में गया, फोल्डर लॉक का फीचर एनेबल कर रहा हूँ, जो एडमिन के पासवर्ड से ही चलता है, एम्प्लॉय को नहीं कर पाएगा, एडमिन ही कर पाएगा उसको। ओके, अब ये फोल्डर लॉक मॉड्यूल में जाएंगे सर, और आपके सामने देखिए सर, ये डेटा का फोल्डर भी ओपन रखता हूँ मैं। तो ये फोल्डर लॉक मॉड्यूल में सर ये डेटा का फोल्डर सिक्योर करना है, मैं यहाँ पे एक क्लिक से सिक्योर कर सकता हूँ। ओके, एक मिनट में, इसके लिए मेरे को एप्लीकेशन तो ये तो टैली चलेगा बट कॉपी नहीं हो पाएगा। हाँ, टैली चलेगा लेकिन कॉपी नहीं कर पाएगा। इवन टैली के वो फोल्डर कहीं पे दिखेगा भी नहीं कि उसके कंप्यूटर में फोल्डर है सर। तो फिर इन केस अपन बैकअप कैसे चलेंगे फिर? वो हमारा सिक्योरा का ऑटो बैकअप प्रोसेस है, जहाँ पे आपके सर्वर में ऑटोमेटिक बैकअप चला जाएगा सर। नहीं, यूजर्स का हमारा भी इंटरनल भी बैकअप शेड्यूल्स है हर कंप्यूटर का, हर हफ्ते में। लेकिन अभी उसको सर, अभी क्या है आपका हर हफ्ते में होता है, ये इंस्टेंट बैकअप है, जैसे ही फाइल चेंज हुआ अपडेट हो जाएगा सर। तो अभी हफ्ते वाला बैकअप से इंस्टेंट बैकअप इजी है ना सर, आपका कंट्रोल है ना सर।
ठीक है, अभी अपन उसी का भी तो बैकअप वाला जो भी पॉलिसी है उसको भी सेटिस्फाई करना है हमको। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अभी कैसा है, आपने 1 वीक के बाद बैकअप लिया और बीच में 4-5वें दिन में आपका डेटा उड़ गया तो क्या करोगे सर, हार्ड डिस्क उड़ गया तो क्या करोगे सर? वो तो काम ही वो लोग हमारा एक्चुअली क्या पूरा ईआरपी सिस्टम है, ये कभी कभी थोड़ा सा हमारा पर्सनल डाटा डालता है, इसलिए हमने वीकली शेड्यूल कर रखा है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ नहीं users बराबर का है, बराबर है सर। इसलिए हमने वीकली एक बार लेता है ताकि वो बंदा 15 दिन में ऐसा एक बार काम करता है उसमें। यस सर तो समझ वो गया मैं। बैकअप नहीं हो पाएगा ना फिर, वो हो क्योंकि गया ना आपने सर, क्यों नहीं restrict होगा कर सर? रखा है। नहीं वो उसको बाद में वो एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम जो बैकअप सॉल्यूशन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो फोल्डर एक्सेस कर पाएगा सर। दे आर एबल टू टेक द बैकअप। यस सर। तो ये प्रोविजन है, बढ़िया। Tally is also secured। यस नहीं टैली तो इज आल्सो सिक्योर। टैली का बैकअप लेता है, अगर वो टैली का बैकअप कमांड से, तो वो तो अलाउ करेगा ना, वो किसी भी नहीं डायरेक्टरी में ले सकता ओके, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर वो जैसे ही बैकअप लेगा ऑटोमेटिकली वो फाइल एनक्रिप्ट हो जाएगा सर। है, वो वो किसी भी फाइल ड्राइव ऑटोमेटिक में इधर जाए। भी ले, कहीं पे भी ले, ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगा सर। एनीवे ऑटो एनक्रिप्ट का फीचर है ना सर, ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगा और वो सिक्योर एक्सटेंशन में बन जाएगा सर। और अब वो क्लाइंट के बैकअप ले रहा है तो सर्वर तो पे तो फिर आप कर दिया, अब वो क्लाइंट पे काम कर रहा है, हाँ, क्लाइंट कंप्यूटर पे वो बैकअप ले लेता है और उसे ले जाता है अपने घर पे। लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ सर कि वो फोल्डर ही, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये मैं 1 मिनट एप्लीकेशन बंद करता हूँ मेरी, मैं आपको एप्लीकेशन बंद करके प्रॉपर्ली दिखाता हूँ, बिकॉज वो शेयरिंग नहीं हो रहा है मेरा स्क्रीन। जस्ट एक सर सेकंड में आपको। ये समझा दीजिए बस हमें कि सर्वर पे आपने अप्लाई कर दिया, अब क्लाइंट मेरे 10 मशीन है क्लाइंट की, यस 10 में कोई भी फर्स्ट वन या 7th वन या 9th वन जो है वो आप बैकअप ले सकता है आज की डेट में टैली का बैकअप कमांड से। बराबर है सर, लेकिन वो मैं जो आपको कमांड का वो साथ में 7th कंप्यूटर पे ले रहा है, मान लीजिए वहां से वो कॉपी Yes, कर, तो वहां क्या प्रोटेक्शन है आपका? मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ, आपको नहीं कर पाएगा। Just hold on. अच्छा अभी चालू हो गया ना ये। 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ पूरा। ओके अभी देखिए सर, मैं सेटिंग्स मॉड्यूल में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी सेटिंग्स में एक्टिवेट फोल्डर लो के, जो मेरा एडमिन पासवर्ड से ही चलेगा। मैंने ओपन किया, अभी मेरा फोल्डर लॉक का मॉड्यूल चालू हुआ। यू कैन सी द फोल्डर लॉक मॉड्यूल। ओके अभी मेरा नॉर्मली मेरा कंप्यूटर में टैली का फोल्डर है ये ऐसा। ये टैली का फोल्डर है यहाँ पे और डेटा का फोल्डर है यहाँ पे ओपन है। अभी मुझे उसको सिक्योर करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट तो मैं एज ए एडमिन में क्या करूंगा, यहाँ पे उसको सिक्योर कर दूंगा। देखिए मैं टैली का डेटा फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, जो फोल्डर आपको ऐड करना है कर सकते हैं, मल्टीपल। मतलब मैं अभी एक डेटा का दिखा रहा हूँ, ये किया मैंने, 3 डॉट पे गया, मैं एनेबल किया, मार्क हिडन कर दिया। अभी देखिए सर ये हिडन कर दिया। अब ये डेटा का डेटा है ना, ये फोल्डर किसी को दिखेगा ही नहीं आपके कंप्यूटर में फोल्डर। ये देखिए एरर क्या आ रहा है, विंडोज कांट फाइंड सी ड्राइव टैली चेक स्पेलिंग एंड ड्रैग। इवन डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाएंगे या कहीं से भी जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा सिक्योर कर दिया हमने। ये देखिए टैली ईआरपी और सीडी डेटा, एरर क्या आ रहा है सर, एलिमेंट नॉट फाउंड दिख रहा है। फोल्डर है आपके कंप्यूटर में लेकिन कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस मिलेगा ही नहीं सर उसका। सर अब इसका बैकअप टैली कमांड से बैकअप लेते हैं तो वो तो ना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आप? तो वही बोल रहा हूँ कि टैली का जैसे ही बैकअप लेगा वो फाइल ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगा सर। हमारा एनक्रिप्शन प्रोसेस सीधा ऑटो एनक्रिप्शन प्रोसेस है ना सर, ऑटोमेटिक बैकअप लेगा। जैसे ही करेगा वो सिक्योर कर, मतलब जैसे ही बैकअप लिया एनक्रिप्ट कर देगा, इंस्टेंट एनक्रिप्शन। चाहे वो किसी भी ड्राइव में ले, कहीं पे भी ले, एनीवे। अब वो किसी भी कंप्यूटर में ले तो कोई भी कंप्यूटर में भी सर लेगा, कहीं पे भी करेगा, वो कंप्यूटर से बैकअप लेने जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगा सर। शो कर सकते हैं सर अभी मेरे को वो एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मुझे एनेबल नहीं करना है ऑटो बैकअप, बिकॉज मेरा पीसी से मैं करता हूँ। 1 मिनट में देखता हूँ, ये पीसी में कर सकता हूँ, डेमो पीसी में, तो देख लेता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ।
मैं आपको प्रोसेस भी समझा देता हूँ तो आपको समझेगा। मेजोरिटी कस्टमर की डिमांड यही है कि टैली का डेटा बैकअप कोई भी ले सकता है। सर और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे टैली के पार्टनर है जो ये प्रोडक्ट को हमारे बेच रहे हैं टैली के लिए स्पेशल। देखिए अभी हमने क्या किया है सर कि अभी जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा ना सर, हमने यहाँ पे ये फाइल है कॉन्फ़िगर फाइल फॉर ऑटो एनक्रिप्शन है, बराबर है। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए टैली का 001 बैकअप होता है, टीबी के बैकअप होता है, वो मैंने एनेबल कर दिया, इसको एनेबल कर दिया और इसको एनेबल कर दिया। ओके, ये दो फाइल को मैंने एनेबल कर दिया। तो क्या होगा कि जो भी डेटा उसका एम्प्लॉय जनरेट करेगा 001 फाइल की ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगी सर। और वो आपको एम्प्लॉय वाइज भी असाइन करना है वो भी कर सकते हैं सर। देखिए आपने बोला ना कि कोई भी नहीं करना चाहिए, तो ये समझो ये केतन टेस्ट करके यूजर है, उसके अंदर में गया, अल्ट्रा कंटेंट प्रोटेक्शन में गया, ऑटो एनक्रिप्शन फाइल्स में गया और यहाँ पे जाके मुझे उसके देखिए सर कहीं पे भी रिमूवेबल डिवाइस, हार्ड ड्राइव, कहीं पे भी, मतलब ये दोनों जगह पे डाल दिया मैंने। और यहाँ पे वो फाइल में डाल सकता हूँ कि मुझे कोई भी फाइल्स यहाँ पे चाहिए मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ, मतलब ऑटो एनक्रिप्शन में डाल दूंगा मैं और अप्लाई कर दूंगा, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सर्वर पे तो आप कर दोगे, अब सर्वर के साथ 10 मशीनें और हैं, उन 10 मशीनों पे भी आप करोगे क्या? तो यही तो बोल रहा हूँ सर, यही तो था सेटिंग, ये उसके मशीन में ही हो जाता है एनक्रिप्ट। लेट मी शो यू सर्वर पे जो मशीनें हम करेगा उसमें सेटिंग हो जाएगी वन टाइम। यस सर, लेट मी शो यू इफ आई कैन शो यू कैसे ऑटो एनक्रिप्शन चल रहा है ना, इजी हो जाएगा आपको समझने में। अभी देखिए मेरा ये डेमो टेस्ट 2 पीसी है ना, डेमो 2 पीसी, उसको मैं ऑटो एनक्रिप्शन के लिए ट्रू कर देता हूँ। ओके, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि ऑटो एनक्रिप्शन कैसे चलता है। जैसे मैंने ऑटो एनक्रिप्शन 2 किया सर, ये देखेंगे ना, ये मेरी ये जो CRM वाली फाइल है ना ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट हो जाएगी, जस्ट सर्वर पे अपलोड हो रहा है फर्स्ट टाइम इसके लिए। ओके, यहाँ पे जाएंगे ना, ये देखिए अभी ये फाइल है ना ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाएगी। क्लाइंट मशीन पे भी, क्लाइंट मशीन में भी हो जाएगी सर, और आप मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर करना है। इंस्टेंट एनक्रिप्ट किया, वो इंस्टेंट एनक्रिप्ट हो गया सर, दिखा है ये इंस्टेंटली हो गया, सिक्योर एक्सटेंशन आ गया इसके पर। सो ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं और मैन्युअल भी हो जाते हैं। ये अगर नेटवर्क में अगर उसको अगर उसको डिक्रिप्ट करना है सर, उसको एडमिन का पासवर्ड लगेगा या उसको हम लोग को राइट्स देना पड़ेगा कि भाई डिक्रिप्ट कर सकते हैं उस यूजर को। हाँ, उस यूजर को राइट्स देना पड़ेगा। सपोज 1 सर्वर है और 10 मशीन है, 11 कंप्यूटर है टोटल ऑर्गेनाइजेशन में। यस, तो ऑल द 11 विल बी प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरा। यस सर, ऑल, मतलब जहाँ पे भी मशीन है सब में सिक्योर डालना पड़ेगा सर। नेटवर्क कंट्रोल लोकल नेटवर्क में भी है कैसे? यस 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 यस, RDP पे है तो वो भी। यस सर, वहाँ पे भी। ओके ओके, तो आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगा सर। जैसे अभी समझिए ना सर, अभी अभी हम जूम में कनेक्टेड है, जूम के आपको डालना ही पड़ा। व्हाट्सएप में मेरे को कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपको डालना ही पड़ेगा सर। सिंपल लॉजिक है सर। सो एनी मोर क्वेश्चन सर? कोई डाउट है और भी पूछ सकते हैं। अच्छा है मुझे आप क्वेश्चन पूछ रहे सर। इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भेज सकता है सारी? यस सर, पूरा मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा, आपको ये बुकलेट भी भेजूंगा सिक्योरा की, जो बुकलेट है। अच्छा एक क्वेश्चन और है। यस, आपने जैसे कहा कि सिक्योरा होगा तभी ऑन होगा एनक्रिप्टेड फाइल, अदरवाइज नहीं होगी। तो सिक्योरा कोई थर्ड पार्टी जो थेफ्ट केस है तो वो भी तो सिक्योरा डाउनलोड करके उसको ओपन कर सकता है, अनएनक्रिप्टेड कर सकता है। नहीं कर पाएगा ना, कैसे कर पाएगा? अनएनक्रिप्ट करने के लिए उसका की चाहिए, की कैसे करेगा? की कंट्रोल आपके पास है। इवन बोल रहा हूँ ना, हमारा डेवलपमेंट कंपनी है, हमने प्रोडक्ट बनाया, हम भी आपका डेटा नहीं सीखे, उसको ओपन नहीं कर पाएंगे तो अपना लोकल मशीन से ही एनक्रिप्ट होगा सर। या सर्वर से की जनरेट होगी। हाँ, सर्वर से की नहीं जनरेट होती है, आपके कंप्यूटर में जब भी आप कंटेंट जनरेट करते हो, कंप्यूटर के अंदर की जनरेट होती है, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है, सर्वर के कंट्रोल में कुछ नहीं है।
क्यों जो क्लाइंट एंड पे जो एन्क्रिप्शन जनरेट हो रहा है वो क्या Yes. सर्वर से बात नहीं करेगा क्या, ऑन प्रीमिसेस सर्वर से? ऑन प्रीमाइज सर्वर को बताएगा कि ये किया है, लेकिन की बनती है क्लाइंट सर्वर पे, सर्वर पे नहीं बनती है, मैं वो बोल रहा हूँ। वो इसमें इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन सर्वर को भी जो देगा ना वो खुद की प्राइवेट पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके भेजेगा, ये ले की रख तेरे पास, उसके पास पड़ी है, लेकिन वो भी एनक्रिप्टेड पड़ी है, जिसका कंट्रोल वापस वो एम्प्लॉय के पास है और एम्प्लॉय का कंट्रोल एडमिन के पास है। हाँ वही तो, हम्म, इनकेस एम्प्लॉय नहीं है तो फिर एडमिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं एडमिन कर पाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एडमिन हैज ऑल कीज एक्सेस, हाँ, एडमिन इज द एज द मास्टर कीज। इनकेस यूजर नहीं है तो फिर एडमिन तो कुछ करके काम तो आगे बढ़ाएगा। यस, एडमिन कोई यूजर के डिपेंडेंट नहीं है, एडमिन एडमिन है, वो सबके पास, सबका डेटा उसके पास पड़ा है, सबका कीज उसके पास पड़ा है, एवरीथिंग ही इज ऑन। तो उसको किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी यूजर चला गया, उसका लैपटॉप क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, उसको टेंशन नहीं है, वो दूसरा लैपटॉप में डाल के डलवा देगा, वो यूजर को चालू हो जाएगा 2 मिनट में, चालू खत्म। थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए आप। श्योर सर, श्योर सर। एनी मोर क्वेश्चन सर?